Class 8th, Poem 2, Porus and his Elephant. Written by Mary Dobson. Hear ye a tale of the days gone by, days whose recording is short and scant. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. Out on the plain where the waters go, out on the banks of the Jhelum wide, Porus the king went to meet his foe, Porus the king in his battle pride. Drawn up his elephants in array, standing in state in unbroken rank, while Alexander the Great for fray led up his troops on the other bank. Fires raged the fight, it was hard to tell what would betide, and they fought the more, till from his elephant sudden fell Porus the king, who was wounded sore. Then did the elephant, faithful beast, for his defense play a gallant part, standing above him lest ere the least harm should assail him from blow or dart. Trumpeting loudly he held at bay foemen with arrow or spear or sword, challenged them all to approach their prey, dared them to injure his wounded lord. Then at the last with his mighty trunk lift him tenderly on his head, bore him in unconsciousness, faintness sunk, where he could rest without fear or dread. Ah, these dumb things that but cry and pant, they too can love, for God made them so. Porus was saved, but his elephant died from his wounds, then thus the legends go. So here in this poem, Mary Dobson, written by this poem Porus and his Elephant, in this first stanza, hear ye a tale of the days gone by, days whose recording is short and scant. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. तो यहाँ पे बोल रही है पोइटेस, सुनो तुम एक कहानी उन दिनों की जो अब गए हैं बीत, वो दिन जो अब बीत गए हैं, वो दिन जिनका रिकॉर्ड है बहुत ही छोटा और बहुत ही कम। ये कहानी है ऐसी जो कभी नहीं मिट सकती है, जो कभी नहीं ख़त्म हो सकती है, मिट सकती है। बताई गई है जो एक राजा और उसके हाथी के बारे में। Out on the plain where the waters go, out on the banks of the Jhelum wide, Porus the king went to meet his foe, Porus the king in his battle pride. वो मैदान जहाँ है बहती नदी की धारा और झेलम के किनारे पर, जो कि बहुत ही वाइड है, बहुत ही वाइड किनारा है झेलम का, बैंक ऑफ द झेलम वाइड। राजा पोरस गया था करने अपने दुश्मन से वहाँ पे मुलाकात, मिलने गया अपने दुश्मन से। राजा पोरस था अपने जंग के गरूर में, प्राउड में, प्राइड में। Drawn up his elephants in array, standing in state in unbroken rank, while Alexander the Great for fray led up his troops on the other bank. अपने हाथियों को कर दिया खड़ा एक कतार में, एक कतार में अपने हाथियों को
खड़ा कर दिया एक लाइन में और शाही ढंग से जो खड़े एक अटूट दर्जा बंदी में जहां से कोई गुजर नहीं सकता। जबकि सिकंदर आज़म ने जंग के लिए की क़यादत अपनी फ़ौज की दूसरे किनारे पर। एक किनारे पर था पोरस अपनी फ़ौज के साथ और दूसरे किनारे पर अलेक्जेंडर। Fires raged the fight. It was hard to tell what would betide, and they fought the more, till from his elephant sudden fell Porus the king, who was wounded sore. खौफनाक चली लड़ाई, बहुत ही फायर्स रेज्ड हुई फाइट, बहुत ही खौफनाक चली उनके बीच में लड़ाई। मुश्किल था ये कहना कि अब क्या होगा, और वो लड़े और खूब लड़े। They fought the more, वो लड़े और खूब लड़े। जब तक के राजा पोरस नहीं गया अचानक अपने हाथी से गिर, जो हो गया था वुंडेड, जख्मी बहुत। तो एकदम से राजा पोरस अपने हाथी से गिर गया, जो कि जख्मी हो गया था, वुंडेड हो गया था। Then did the elephant, faithful beast, for his defense play a gallant part, standing above him, lest ere the least harm should assail him from blow or dart. तब पोरस के हाथी ने, जो कि एक वफादार जानवर था, पोरस का हाथी, उसने अपने राजा को बचाने के लिए एक गैलेंट पार्ट प्ले किया, बहुत ही हिम्मत वाला काम किया अपने राजा को के डिफेंस में, उनको बचाने के लिए। तो उनके ऊपर वो झुक कर खड़ा हो गया, स्टैंडिंग अबव हिम, उनके ऊपर आके खड़ा हो गया पोरस के ऊपर, और कि कहीं ना लग जाए चोट इसको थोड़ी सी भी, वार से या तीर से, या किसी के ब्लो से या डार्ट से, तीर से या फिर किसी के वार से पोरस को लग ना जाए। तो हाथी पोरस के ऊपर आकर खड़ा हो गया। Trumpeting loudly he held at bay 4 men with arrow or spear or sword, challenged them all to approach their prey, dared them to injure his wounded lord. जोर जोर से चिंघाड़ते हुए उसने रखा दूर आगे खड़े फौजी को, जो था थामे तीर या भाला हाथों में या तलवार। उन सब को ललकारा अपने शिकार तक पहुंच सकने के लिए, मीन्स पोरस के पास पहुंचने के लिए उन सब को ललकारा हाथी ने। हिम्मत है उन्हें तो इसके जख्मी मालिक को नुकसान पहुंचा कर दिखाओ। Then at the last with his mighty trunk lifted him tenderly on his head, bore him in unconsciousness faintness sunk, where he could rest without fear or dread. तब आखिर में अपनी मजबूत सूंड से उठाया उसने प्यार से सर पर अपने, उठाकर ले गया उसे बेहोशी में वहाँ से, वो कर सकता था जहाँ पे आराम, बिना किसी शक या डर के जहाँ पे।
Ah, these dumb things that but cry and pant, they too can love, for God made them so. Porus was saved, but his elephant died from his wounds, thus the legends go. ये बेज़बान चीज़ जो सिर्फ चिल्ला सकती है और हाँफ सकती है, वो भी कर सकती है प्यार, क्योंकि गॉड ने इन्हें बनाया है ऐसा। पोरस गया था बच, मगर उसका हाथी गया था मर, अपने जख्मों के सबब में कहती है ये ऐसी लोक कहानी। नाउ टेक्सचुअल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डिड द एलिफेंट सेव द लाइफ ऑफ पोरस? तो एलिफेंट ने पोरस की लाइफ कैसे सेव की, कैसे बचाई? हाथी ने पोरस को कैसे बचाया? When Porus fell down during the battle, the elephant leaned over him as his shield to save him from blows or arrows. जब पोरस गिर गया लड़ाई के मैदान में जख्मी होकर, तो जो हाथी था वो उसके ऊपर लींड हो गया, उसके ऊपर झुक गया, उसके ऊपर आके खड़ा हो गया जैसे कि कोई शील्ड हो, और फिर उसे बचाया उसने ब्लोज से और एरो से, तीरों से या वार से बचाया। देन ही लिफ्टेड द पोरस विद हिज माइटी ट्रंक, और उसके बाद पोरस को उसने अपनी ताकतवर सूंड से उठाया और प्यार से अपने सर पे बिठाकर सेफ जगह पर लेकर गया। क्वेश्चन 2, व्हाट डज द पोइट मीन बाय दीज डम थिंग्स दैट बट क्राई एंड पैंट, दे टू कैन लव, फॉर गॉड मेड देम सो? तो पोइट का क्या मीनिंग है इन लाइन्स में? हियर द पोइट मीन्स टू से दैट द एनिमल्स हु कांट स्पीक कैन ऑल्सो लव। यहाँ पे पोइट का ये मीनिंग है कि ये जानवर जो बोल नहीं सकता, ये प्यार भी कर सकता है। दे कांट क्राई एंड पैंट ऑनली, ये सिर्फ चिल्ला या खाली हाँप या चिल्ला नहीं सकता। Though they can't express their feelings through words, yet they too can do anything in their love. ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में, लेकिन ये कुछ भी कर सकते हैं अपने प्यार की खातिर। Perhaps God has made them to be loving. तो शायद भगवान ने इन्हें प्यार करने के लिए ही बनाया है, ऐसा ही बनाया है। क्वेश्चन 3, राइट द स्टोरी टोल्ड इन द पोइम इन योर ओन वर्ड्स। अपने वर्ड्स में इस पोइम की स्टोरी को लिखो। वन डे द ब्रेव किंग पोरस वेंट टू मीट हिज एनिमी अलेक्जेंडर द ग्रेट एट द बैंक ऑफ द रिवर जेलम। तो एक दिन जो राजा पोरस था वो अपने दुश्मन अलेक्जेंडर द ग्रेट से मिलने के लिए जेलम के किनारे पर गया। ही टुक हिज एलिफेंट विद हिम, और वो अपना हाथी अपने साथ लेकर गया। द एलिफेंट वॉज वेरी लॉयल टू हिज मास्टर। तो हाथी जो था एलिफेंट, वो बहुत ही वफादार था अपने मास्टर का। पोरस वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज माइटी आर्मी। पोरस को बहुत ही गुमान था अपने ताकतवर आर्मी पे। पोरस सेट एलिफेंट्स इन अरे ऑन वन साइड ऑफ द रिवर, और पोरस ने अपने सभी हाथी एक कतार में, एक लाइन में खड़े कर दिए दरिया के एक साइड पर। ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर अलेक्जेंडर वॉज लीडिंग हिज ट्रूप्स, और दूसरी साइड दरिया के अलेक्जेंडर जो था वो अपने ट्रूप्स के साथ खड़ा हुआ था। अ फायर्स बैटल स्टार्टेड बिटवीन देयर आर्मीज, और बहुत ही डरावनी लड़ाई हुई दोनों आर्मीज के बीच में। Both the armies were fighting with equal courage and strength, as it was hard to tell who would be the winner. दोनों आर्मीज बहुत ही हिम्मत के साथ और पूरी ताकत के साथ लड़ी, और ये बहुत मुश्किल था कहना कि कौन जीतेगा। Suddenly Porus fell down from his elephant,
और अचानक से पोरस अपने हाथी पर से गिर गया। He was wounded so badly that he couldn't rise from the ground. और वो इतनी बुरी तरीके से जख्मी हो गया कि वो जमीन से, धरती से उठ नहीं सकता था। His loyal elephant leaned over his master to save him from the enemy's swords and arrows. और उसका जो वफादार हाथी था वो उसके ऊपर आके खड़ा हो गया ताकि दुश्मनों की तलवार से और उनके वार से वो उसे बचा सके। Then he lifted the king with his mighty trunk and took him to a safe place. और फिर वो अपने राजा को अपनी ताकतवर सूंड से उठाकर अपने ऊपर बिठा दिया और किसी सुरक्षित जगह पर लेकर गया। Thus he saved the life of his master, but unluckily he himself died. तो इस तरह से उसने अपने मास्टर की जान बचाई और खुद की जान गंवा दी। लेकिन बदकिस्मती से हाथी की जान चली गई। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोइम? इस पोइम की राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए बी। क्वेश्चन 5, द पोइम रिफ्लेक्ट्स द फेथफुलनेस ऑफ एन एलिफेंट टुवर्ड्स हिज मास्टर, एक्सप्लेन। ये जो पोइम है ये एक एलिफेंट की उसके मास्टर के लिए उसकी जो फेथफुलनेस है, वफादारी है, उसको रिफ्लेक्ट करती है। तो इसको एक्सप्लेन करो। दिस पोइम टेल्स अस हाउ एन एलिफेंट सेव्ड द लाइफ ऑफ हिज वुंडेड मास्टर ड्यूरिंग द बैटल। तो ये पोइम हमें बताती है कि किस तरह से एक हाथी ने अपने जख्मी मास्टर को बचाया लड़ाई के दौरान। इट वॉज द बैटल बिटवीन पोरस एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट। और ये लड़ाई थी पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में। Their armies were fighting fiercely in the battlefield. और उनकी जो आर्मीज थी वो लड़ रही थी बहुत ही खौफनाक लड़ाई जंग के मैदान में। Suddenly Porus fell down from his elephant. और एकदम अचानक से पोरस जो था अपने हाथी से गिर गया। He was so badly wounded that he couldn't rise from the ground. और वो इतनी बुरी तरीके से जख्मी था कि वो ग्राउंड से उठ नहीं सकता था। When his elephant found his master in danger, he leaned over his master to save him from the enemy's arrows and swords. जब उसके हाथी ने ये देखा कि उसका मास्टर खतरे में है तो वो उसके ऊपर आकर झुककर खड़ा हो गया और उसको दुश्मनों के वार से बचा लिया। He trumpeted loudly to scare away the enemy. और बहुत जोर से चिंघाड़ा ताकि जो दुश्मन है वो दूर हो जाएं उससे। He bore all the attacks on his body. और सारे जो अटैक थे वो उसने अपनी बॉडी पर ले लिए। He didn't care for his wounds and lifted the king with his mighty trunk and took him to a safe place. उसने अपने जख्मों की चिंता नहीं की और राजा को लिफ्ट करके अपनी ताकतवर सूंड से एक सेफ जगह पर ले गया। Thus he saved the life of his master through though he himself died of wounds. तो इस तरह से उसने अपने मास्टर की जान बचा ली जबकि अपने जख्मों की वजह से उसकी जान चली गई। He showed faithfulness to his master by saving him at the cost of his own life. तो इस तरह से उसने अपनी वफादारी का सबूत दिया अपने मास्टर के लिए, उसको बचाकर और अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर। नाउ क्वेश्चन 6, टिक द राइट आंसर। तो राइट आंसर को टिक करेंगे। फर्स्ट इज पोरस मेट हिज एनिमी ऑन द बैंक ऑफ द झेलम। तो इसका आंसर आएगा द झेलम। सेकेंड इज अलेक्जेंडर इन द पोइम इज रेफर्ड टू एज फो। वो एनिमी था तो फो आएगा, FOE फो। थर्ड इज हु वाज वुंडेड। हु वाज वुंडेड? पोरस। पोरस जो था वो जख्मी हो गया था तो पोरस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 4, द वुंडेड पोरस इज लिफ्टेड बाय हिज एलिफेंट। तो क्वेश्चन 4 का आएगा हिज एलिफेंट। फिफ्थ इज हु सेव्स पोरस। तो पोरस को किसने बचाया? हिज एलिफेंट। ए पार्ट हिज एलिफेंट।
Now, language work. Use the following words, phrases and expressions in your sentences. तो इन्हें हम यूज़ करेंगे इन वर्ड्स को, फ्रेजेस को हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट इज डेज गॉन बाय. डेज गॉन बाय क्या हो गया? बीते दिन. इन द डेज गॉन बाय ही यूज्ड टू बी क्वाइट रिच. तो बीते दिनों में वो काफ़ी अमीर हुआ करता था. सेकंड इज फ्रे. फ्रे कहेंगे हमला. फ्रे का मीनिंग हो गया हमला करना. अलेक्जेंडर्स आर्मी वॉज रेडी फॉर द फ्रे. अलेक्जेंडर की आर्मी हमले के लिए तैयार थी. तो थर्ड इज टू होल्ड एट बे. टू होल्ड एट बे का मीनिंग हो गया दूर रखना. होल्ड एट बे योर एनिमीज. अपने दुश्मनों को दूर रखो. क्वेश्चन 4. बैटल प्राइड. जंग के मुतल्लक गरूर. बैटल प्राइड मीन्स जंग के मुतल्लक गरूर. एवरी ट्रू सोल्जर इज फिल्ड विद बैटल प्राइड वाइल फाइटिंग फॉर द कंट्री. तो हर एक जो सच्चा सोल्जर है, फौजी है, उसमें जंग के मुतल्लक ये गरूर होता है जब वो अपने देश के लिए लड़ रहा होता है. फिफ्थ इज फॉट द मोर. लड़ते चले गए. फॉट द मोर मीन्स लड़ते चले गए. दे फॉट द मोर टू थिंक दैट दे वर फाइटिंग फॉर द कंट्री. वो लड़ते चले गए ये सोचकर कि वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं. सिक्स्थ इज गैलेंट पार्ट. गैलेंट पार्ट हो गया निशान जरात. द एलिफेंट प्लेड हिज गैलेंट पार्ट टू सेव हिज मास्टर ड्यूरिंग द बैटल. तो एलिफेंट ने गैलेंट पार्ट प्ले किया अपने मास्टर को की जान बचाकर जंग के दौरान. सेवंथ इज माइटी ट्रंक. माइटी ट्रंक हो गया ताकतवर सूंड. मोती गुज uprooted the stump with the help of his mighty trunk. तो मोती गुज ने पेड़ों को उखाड़ दिया अपनी ताकतवर सूंड की मदद से. Now second part is use the following words as nouns and verbs in your sentences. So first is record. Record को अब यूज करना है as a noun. You should keep a record of your expenses. तो यहाँ पे रिकॉर्ड यूज हुआ है एज ए नोन. तो आप अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखो अपने पास. सेकंड इज रिकॉर्ड इज अब यूज करना है वर्ब एज ए वर्ब. यू शुड रिकॉर्ड ऑल योर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग योर ट्रिप. तो तुम अपने सारे खर्चों को रिकॉर्ड करो अपने ट्रिप के दौरान. सेकंड इज प्रेजेंट. A present as a noun. My uncle sent me a beautiful birthday present. तो मेरे अंकल ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत मेरे जन्मदिन का उपहार दिया. तो यहाँ पे प्रेजेंट यूज हुआ है एज ए नोन. नाउ प्रेजेंट एज ए वर्ब. आवर कॉलेज प्रेजेंटेड अ वैरायटी शो. तो हमारे कॉलेज ने एक वैरायटी शो प्रेजेंट किया. थर्ड इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट एज ए नोन. व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट इन गोइंग देयर. तो तुम्हारा क्या मकसद था वहाँ जाने का, क्या ऑब्जेक्ट था वहाँ जाने का. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज हुआ है एज ए नोन. नाउ ऑब्जेक्ट एज ए वर्ब. आई डू नॉट ऑब्जेक्ट टू योर गोइंग देयर. तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है तुम्हारे वहाँ जाने पर. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज हुआ है एज ए वर्ब. सो फोर्थ इज कॉन्टेस्ट. कॉन्टेस्ट एज ए नोन. Last year her sister won the beauty contest held in her college. तो पिछले साल उसकी बहन ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता है कॉलेज में. तो यहाँ पे कॉन्टेस्ट यूज हुआ एज ए नोन. नाउ कॉन्टेस्ट एज ए वर्ब. 3 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड फॉर लीडरशिप. 3 कैंडिडेट जो थे वो लीडरशिप के लिए कंटेस्टेड हुए, मीन्स लड़े. Now fifth is produce. Produce as a noun. Produce as a noun. This shop sells only fresh local produce. तो ये दुकान सिर्फ ताज़े जो लोकल पैदावार है उसी को बेचती है. Now produce as a verb.
शी प्रोड्यूस्ड अ टीवी सीरियल अबाउट अडॉप्टेड चिल्ड्रन। तो उसने एक टीवी सीरियल प्रोड्यूस किया जो कि अडॉप्टेड चिल्ड्रन के बारे में था।